Hello students, welcome to your channel Zebish English Classes. I hope you all are good, and in today's video lecture I have again picked up this book The Tempest, which is from ISC board for the students of 11th as well as 12th standard. And from this book I'll be doing the line by line explanation of Act 1 Scene 2. I have already done the explanation of Act 1 Scene 1 in details, that is line by line explanation. So in today's video lecture I will go ahead with another scene of Act 1, that is Scene 2, and I'll be doing the line by line explanation, which was quite demanded by the students. So now it's time I'm doing this. Please subscribe to the channel and stay connected with me. You can also put forth your queries to my Gmail account, which I have given in my about section, so that I can help you with whatever queries you put forth. So let us go ahead now. Scene 2, the island before Prospero's cell. So first of all, we need to understand that this scene 2, is taking place on the island in front of the cell of Prospero. As Prospero had reached this island and he had started living his life here, he had built a kind of a cave there, and in that itself he had started dwelling with his daughter named Miranda. So this scene is exactly taking place on the island in front of that cell of Prospero. Enter Prospero and Miranda. So from here we come to know that these are the two major characters that enter the scene, and there will be a conversation between these two characters. And this conversation between these two important characters will help us a lot to understand the play even more, and also to understand the plot. So many important pieces of information will be revealed through this conversation between father and his daughter. So let us see what happens. Miranda is saying, "If by your art, my dearest father, you have put the wild waters in this roar, allay them." Alright, so we know this much, that in Act 1 Scene 1 we had seen that the ship was in the tempest in the sea, and it was suffering from the tempest that might lead to shipwreck and a huge catastrophe. All the passengers in the ship were very much scared, and they did not want to die. They all were praying for their lives, and everyone was scared. This was witnessed by Miranda as well, and therefore Miranda asks this to her father, if her dearest father himself was a reason behind the tempest. And she was saying, if by your art, means if by your magical art, if by your knowledge in the art of magic, my dearest father, you have put the wild waters, because she knows it very well that her father is capable of doing anything, any such thing, with the help of the magical knowledge which he possesses. So मिरांडा इज सेइंग कि माय डियरेस्ट फादर, अगर आपने अपने जादुई ताकत के थ्रू, आर्ट ऑफ मैजिक के थ्रू इस पानी को वाइल्ड किया है, वाइल्डनेस जो है, और इस पानी में डाला है, मतलब सी के अंदर वाइल्ड वाटर्स, यहाँ पर सी के वाटर को कहा जा रहा है जिसमें टेम्पेस्ट आया हुआ था। तो मिरांडा ने कहा कि अगर आपने इस सी में ख़ुद टेम्पेस्ट कॉज किया है और ये रोरिंग साउंड क्रिएट हो रहा है, पानी इतना वाइल्ड हो गया है ड्यू टू दैट स्टॉर्म विच हैज़ बीन कॉज्ड probably by you, तो if you are the reason, then I ask you, I request you, allay them. Allay them means control them, reduce them, प्लीज़ मिटिगेट देम, उसको कम कर दीजिए। अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर आपने अपने आर्ट ऑफ मैजिक से टेम्पेस्ट कॉज किया है सी में, आपकी वजह से पानी वाइल्ड हो रहा है, रोरिंग सिचुएशन है, ऐसा लग रहा है एक दहाड़ने की, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है,
पानी में लहरें इतना ज़्यादा राइज एंड फॉल कर रही हैं जिसकी वजह से ये रोरिंग साउंड क्रिएट हो रहा है, then I request you to control them, to reduce them, to mitigate them, or to allay them. The sky, it seems, would pour down a stinking pitch, but that the sea, mounting to the Vulcan's cheek, dashes the fire out. Oh, I have suffered with those that I saw suffer. All right, so from here we also come to know one thing very well, that the heart of Miranda is very beautiful and she is a virtuous lady. Just because she is not able to see other people in trouble, in sadness, and that she feels bad for them, and she is suffering as well just by witnessing that scene where the catastrophe was present, destruction was there. So वो देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, ऑल्दो वो शिप का पार्ट नहीं है, वो सी में नहीं है, वो टेम्पेस्ट को खुद फेस नहीं कर रही है, स्टिल शी इज़ फीलिंग बैड फॉर दोज पीपल हु आर इन द शिप, हु आर सफरिंग फ्रॉम दैट टेम्पेस्ट. So she is saying the sky, it seems का मतलब है it appears, ऐसा लग रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है, appear हो रहा है, seem हो रहा है कि जो sky है वो बहुत जल्दी pour down का मतलब है नीचे गिराएगी. stinking pitch is referring to ऐसी बारिश जिसमें काला पानी नीचे गिरेगा और एक बहुत गंदी सी स्मेल होगी. यू मस्ट बी नोइंग टार, जो ज़मीन में रोड पर बिछाते हैं, डामर काइंड ऑफ अ थिंग जो रोड पर लगाते हैं, उसकी एक बहुत गंदी सी स्मेल होती है. स्टिंकिंग कह सकते हो उसको, स्टिंकिंग पिच कह सकते हैं. कुछ उसके जैसा काला काला टायर जैसा आसमान से नीचे गिरेगा बहुत जल्दी, ऐसा लग रहा है क्योंकि बादल इतने काले हो रहे हैं और इतना ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है वेदर. देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आसमान बहुत जल्दी काली टायर की बारिश करने वाला है. But that the sea mounting to the Vulcan's cheek is actually referring to the sky, जिसको firmament भी कहा जाता है. लेकिन जो सी का पानी है वो इतना ज़्यादा राइज़ हो जाता है क्योंकि एक सुनामी टाइप की है, एक टेम्पेस्ट है सी के अंदर. तो टेम्पेस्ट की वजह से जो राइज़ एंड फॉल है सी वाटर का वो बहुत ह्यूज है. तो ऐसा लगता है कि सी वाटर इतना माउंट हो जाता है, इतना राइज़ हो जाता है कि वो आसमान को छू लेता है, वेल्किन्स चीक को टच कर लेता है या स्काई को टच कर लेता है. और उसकी वजह से स्काई से जो एक आग नीचे गिरने वाली थी, एक आग निकलने वाली थी, टायर की जो बारिश होने वाली थी, वो बुझ जाती है. उसको कौन बुझा देता है? उसको बुझा देता है ये सी वाटर. तो कुछ ऐसी सीन है कि ऐसा लग रहा है मिरांडा को कि जैसे इतना ज़्यादा क्लाउडी वेदर हो रहा है, इतना ज़्यादा काले बादल हो रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि टायर की बारिश होने वाली है आसमान से. और फिर सी वाटर में इतना ज़्यादा राइज एंड फॉल है कि सी वाटर ऐसा लगता है माउंट कर रहा है या टच कर रहा है स्काई को. और फिर वो सी वाटर बीइंग वाटर वो उस आग को जो आसमान से निकलने वाली थी उसको बुझा दे रहा है. तो दोनों ही अपने काम में लगे हुए हैं. पानी भी इतना हाई जो है वो जा रहा है और आसमान से भी ऐसा लग रहा है कि आग निकलने वाली है. डैशेस द फायर आउट simply means extinguishes or put out the fire, बुझा देना. Oh, I have suffered with those that I saw suffer. हमने उन लोगों के साथ सफ़र किया जिनको हमने सफ़र करते हुए देखा. इसका मतलब ये है कि जो मिरांडा है उसका दिल बहुत ज़्यादा अच्छा है and she could not tolerate the suffering of those people who were in the ship. And she is saying that when I witnessed their tribulation means suffering, that means when she saw them suffering तो she suffered as well. उसको भी उतना ही बुरा लग रहा था उनके दर्द को महसूस करके. A brave vessel which had no doubt some noble creatures in her. Brave vessel has been referred to that ship in which they were sitting.
So brave vessel is actually fine vessel, and fine vessel is referring to that ship, and ship has been personified here, and that's why only her word has been used for the ship due to personification, personifying it or treating it as a person. सो उस शिप के अंदर नो डाउट के कुछ नोबल लोग बैठे हुए हैं, और कुछ बहुत अच्छे एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के, नोबल फैमिली के, रॉयल फैमिली के लोग बैठे हुए हैं. डैशेस ऑल टू पीसेस, दैट मीन्स कि डैश्ड ऑल टू पीसेस, ऑल राइट, जिसके अंदर अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो सब ऐसा लग रहा है जैसे कि उन सब के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे. वो सब जो है वो कैटास्ट्रॉफी का शिकार बन जाएंगे, डिस्ट्रक्शन का, तबाही का, शिपरेक का, और वो सब ख़त्म हो जाएंगे. ओ द क्राई डिड नॉक अगेंस्ट माई वेरी हार्ट, और मेरा दिल बहुत ज़्यादा रो रहा है उनके लिए, बहुत तकलीफ़ में है, बहुत बुरा फील हो रहा है उनके लिए. ओ द क्राई डिड नॉक अगेंस्ट, ऑल राइट, सो आई एम जस्ट फीलिंग बैड फॉर दैम. पुअर सोल्स दे पेरिश्ड. So it seems to me कि वो बेचारे, poor souls means those poor people, I think they perished. They perished का मतलब है they died, they suffered so badly that they died, they expired. Had I been any god of power, I would have sunk the sea within the earth, or it should the good ship so have swallowed and the floating souls within her. अगर मेरे पास कोई भी पावर होती एक गॉड की, अगर हम कोई गॉड होते जिसके पास थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ होती इस डिस्ट्रक्शन, कैटास्ट्रॉफी या शिपरेक या टेम्पेस्ट को कंट्रोल करने की, तो श्योरली आई वुड हैव यूज्ड माय पावर टू कंट्रोल दिस शिपरेक बाय कंट्रोलिंग द टेम्पेस्ट बिफोर कि ये जो शिप है ये ड्राउन हो जाती. आई वुड हैव संक द सी विद इन द अर्थ. इसका मतलब ये है कि हम इस समुद्र को अर्थ के नीचे ही दबा देते, इससे पहले कि ये जो शिप है इसको ये समुद्र सॉलो कर लेता, निगल जाता, इससे पहले कि ये सी शिप को निगल जाती, सॉलो कर लेती, शिपरेक कॉज कर देती, उससे पहले हम इस सी को ही पानी की बजाय लैंड बना देते, इसे हम लैंड एरिया में कन्वर्ट कर देते, इसे हम अर्थ के नीचे दबा देते इस सी वाटर को, और इस तरह से हम ये सब काम इससे पहले करते कि शिप को सी वाटर सॉलो करे, और साथ में उन सारे लोगों को जो उस शिप के अंदर बैठे हैं, फ्लोटिंग सोल्स का मतलब है स्केर्ड या फ्राइटेंड पीपल, इससे पहले कि वो डरे सहमे लोग और शिप डूब जाता सी में, हम उस सी को ही अर्थ के नीचे दबा देते. This is what I have done if I had got any kind of a power as a goddess. It was said by Miranda. Then Prospero is saying, be collected, no more amazement. Tell your piteous heart there is no harm done. So Prospero is saying कि please collect yourself, calm down, do not worry about anything. इतना ज़्यादा अमेज मत हो, इतना ज़्यादा सरप्राइज्ड और शॉक्ड मत हो. इतना ज़्यादा यहाँ पर अमेजमेंट का मतलब सरप्राइज़ और शॉक से ज़्यादा डिस्टर्ब होना या आप कह सकते हो एंक्शियस होना है, तो इतना ज़्यादा अपने अंदर एंग्जाइटी मत रखो, परेशान नहीं हो. अपने पिटीफुल हार्ट को, अपने पीटीएस हार्ट को, दैट मीन्स अपने जेनरस और काइंड हार्ट को ये बता दो कि it doesn't have to worry for those people because it was ensured that they were not harmed. That means those people in the ship are all right and they were not harmed at all. So Miranda is saying, oh, woe the day. Woe the day means the day was so woeful or sorrowful or so sad. Such a sad day it was. It was said by Miranda. Then Prospero is saying, no harm. I have done nothing but in care of thee. In care of thee means for your concern. Thee means you. So Prospero is saying, no harm. I have not done any harm. I have done nothing but in care. और जो भी कुछ हमने किया है वो सब कुछ हमने अपने लिए नहीं किया. मेरा अपना कोई पर्सनल उसमें रीज़न नहीं है, सेल्फिशनेस नहीं है, कोई मकसद नहीं है. ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी कंसर्न में किया है. ऑफ दी मीन्स यू, माई डियर वन, दी माई डॉटर, तुम्हारे लिए मेरी डॉटर. सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए जो कि मेरे लिए बहुत डियर है, उसके लिए किया है.
who art means are ignorant of what thou art, जो इस बात से भी ignorant है, इस बात से unaware है कि वो है कौन. What thou art means what you are, thou means you, art means are. Now let me tell you the difference between thou and thee. Actually thou का मतलब भी you होता है और thee का मतलब भी you होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्यों है? फिर दाऊ और दी क्यों कहा जाता है? सीधे से यू कह दिया जाए, जैसे कि एक जनरल इंग्लिश में हम हर जगह यू का इस्तेमाल कर रहे हैं. सो जो डिफरेंस है वो ये है कि जब हम सब्जेक्ट की जगह पर यू यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम दाऊ का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की जगह यू यूज़ करना है वहाँ पर हम दी का इस्तेमाल करेंगे. एग्ज़ाम्पल, आई लव यू, यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ रहा है तो हम आई लव दाऊ नहीं कहेंगे, आई लव दी कहेंगे. लेकिन अगर हमें कहीं पे सब्जेक्ट की जगह बोलना है, जैसे कि यू लव मी, तो यू लव मी में यू सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो दी लव मी नहीं कहेंगे, दाऊ लव मी कहेंगे. सो ये डिफरेंस होता है, मीनिंग यू ही होता है, बस यूसेज का एप्लीकेशन का डिफरेंस है. दी ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आता है, दाऊ सब्जेक्ट की. सो तुम्हें तो पता ही नहीं है तुम हो कौन. Not knowing, nothing knowing, that means you do not know anything at all. Of whence I am means you do not know this as well, from where I have come and who I am, not that I am more better than Prospero, master of a full poor cell, and thy no greater father. And you also don't know that I am much more than only that Prospero who owns this cell on this island. I am more than that Prospero. That means I am such a personality who is not known to you. तुम सिर्फ उस प्रॉस्पेरो को जानती हो जो इस केव का ओनर है, जो तुम्हारा फादर है, लेकिन I am much better than that as well. Miranda is saying, more to know did never meddle with my thoughts. Okay, but I never thought of it. Did never meddle means interfere with my thoughts, intervene with my thoughts. मेरे दिमाग में तो कभी ये बात आई ही नहीं कि हमें और जानना चाहिए आपके बारे में. Prospero is saying, it is I should inform thee further. I know it is time कि अब हम तुम्हें और आगे की कहानी भी बताएं. Thee means you again. Inform you further means ahead. So I think it's high time for me to tell you more about it. Lend thy hand means lend your hand to me and pluck my magic garment from me. Alright, so you please lend your hand to me and help me take off this magical garment so that I can go ahead and tell you the story of our past days. So lays down his robe. He has already taken off that robe which he was wearing, so he keeps it down. Lie there, my art. And then he also says, my art means that robe or garment was not a normal one. It was not an ordinary garment, but it was a magical one. After wearing it, he possesses more magical power. So he just took it off and he kept it somewhere and said that you should lie there for some time, my magical art. And then he is saying, wipe thou thine eyes means you please wipe off your eyes. अपनी आंसू पोंछ लो, अपनी आँखों को wipe कर लो. Have comfort का मतलब है now feel better. The dire spectacle of the wreck which touched the very virtue of compassion in thee I have with such provision in mine art, so safely ordered, and there is no soul, no, not so much perdition as an hair beat it to any creature in the vessel. Alright, then here Prospero is saying this to Miranda. The direful spectacle of the wreck, I understand that the disgusting, the terrible, the horrible spectacle is the sight. वो जो नज़ारा, वो जो सीन तुमने देखा जो कि डायरफुल थी, टेरेबल थी, हॉरिबल थी, डिस्गस्टिंग, ऑब्नॉक्शियस थी, wreck की सीन, wreck मतलब डिस्ट्रक्शन की, तबाही की सीन. तो वो जो तुमने तबाही का नज़ारा देखा जो कि बहुत ज़्यादा टेरेबल और ख़तरनाक था, जिसने तुम्हारे दिल के अंदर की वर्च्यू मतलब क्वालिटी ऑफ कंपैशन मतलब सिंपैथी को छू लिया. इन दी मीन्स इन यू, जो तुम्हारे अंदर एक सिंपैथेटिक बिहेवियर है, सिंपैथेटिक क्वालिटी है, सिंपैथी की क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर कंपैशन है.
पिटी है, तुम्हारे अंदर के उस कंपैशन, उस पिटी, उस मर्सी की फीलिंग को छू लिया उस सीन ने, उस नज़ारे ने, और तुम्हें बहुत बुरा लगा उन लोगों के लिए जो सफ़र कर रहे थे उस सी और शिप के अंदर। I have with such provision in my art, और क्योंकि मेरे पास इस बात की भी काबिलियत थी, with the help of my magical art, तो हमने ऐसा किया, safely ordered, हमने इस बात के लिए ऑर्डर दिया, that there is no soul, no not so much perdition as in है, हमने इस बात का ऑर्डर दिया कि वो सारे लोग जो शिप के अंदर हैं उनका एक बाल के बराबर भी पर्डिशन मतलब नुकसान, लॉस नहीं होना चाहिए, उनको एक बाल के बराबर का भी हार्म या नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। Beat it to any creature in the vessel, that means happened to any creature in the vessel. Vessel is the ship. Beat it happened. Any creature means any person who was in the ship. तो शिप में बैठे किसी भी इंसान को एक बाल के बराबर का भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। I ensured it. Which thou heardest cry, thou means you, heardest means heard, cry, which thou sawest sink, sit down. All right, हम उसी शिप की बात कर रहे हैं जिसमें से तुमने चिल्लाने की आवाज़ें आती हुई सुनी, जिसको तुमने डूबते हुए देखा। हमने उस वेसल के अंदर बैठे हुए लोगों के लिए इस ऑर्डर को पास किया था कि उन्हें एक बाल के बराबर भी नुकसान ना पहुँचे, उनमें से किसी को भी। इसलिए अब तुम्हें डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिट डाउन, बैठ जाओ। फॉर मीन्स बिकॉज दाउ मस्ट नो नाउ नो फर्दर, क्योंकि इट्स टाइम फॉर यू टू नो मोर अबाउट इट। Miranda is saying, you have often begun to tell me what I am, but stopped and left me to a bootless inquisition. Miranda is saying, जी ये तो अक्सर आपने किया है कि आपने हमें बातें बताना स्टार्ट किया है, वो बातें जो हमें अब तक पता नहीं है, जो आप कहते हैं कि मेरे पास से रिलेटेड है और जिसके बारे में हम अनअवेयर हैं, लेकिन जब आप बताना स्टार्ट करते हैं तो आप बीच में ही रुक जाते हैं। एंड लेफ्ट मी टू अ बूटलेस इंक्विजिशन, इसका मतलब ये है, इंक्विजिशन का मतलब होता है क्यूरियोसिटी और बूटलेस का मतलब है यूज़लेस। होता ये है कि आप बताना तो स्टार्ट करते हैं लेकिन फिर आप हमें एक ऐसे पॉइंट पे छोड़ देते हैं बताना जहाँ पर हम इंक्विजिटिव तो बहुत होते हैं, क्यूरियस तो बहुत होते हैं, जिज्ञासु तो बहुत होते हैं जानने के लिए, लेकिन वो सब यूज़लेस होता है बिकॉज बूटलेस होता है, यूज़लेस होता है, वेन होता है बिकॉज आप बताते नहीं हैं फिर उसके आगे। कंक्लूडिंग स्टे नॉट येट, सिर्फ आप इतना कह के सब कहानी वहीं पर रोक देते हैं कि अभी रुक जाओ, ये सही वक्त नहीं है, अभी नहीं, बाद में बताएंगे इसके आगे। प्रॉस्पेरो इज सेइंग द आवर इज़ नाउ कम, लेकिन वो वक्त अब आ चुका है, वो समय आ गया है। द वेरी मिनट बिड्स दी मीन्स यू, ओप मीन्स ओपन, दाइन मीन्स योर ईयर। इस वक्त आई एम कमांडिंग यू, आई एम बिडिंग यू टू ओपन योर ईयर, अपने कानों को खोल लो, इसका मतलब बिल्कुल अटेंटिव हो जाओ सुनने के लिए। ओबे एंड बी अटेंटिव, एकदम कहना मानो और अटेंटिव होकर के मेरी बात को सुनो। Canst thou remember a time before we came unto this cell? कैन यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है वो वक्त जब हम सेल में आए थे उससे पहले का? क्या तुम्हें वो समय, वो टाइम याद है जब हम इस सेल में नहीं आए थे, मतलब आइलैंड पर आने से पहले का समय? क्या मिरांडा को याद है? ये सवाल प्रॉस्पेरो ने मिरांडा से पूछा। आई डू नॉट थिंक दाउ कैनिस्ट, हमें नहीं लगता कि तुम्हें ये बात याद है। फॉर मीन्स बिकॉज, देन, दाउ मीन्स यू, वॉस्ट मीन्स वॉज, नॉट आउट मीन्स बियॉन्ड 3 years old। दैट मीन्स उस टाइम तुम 3 साल से ज़्यादा की नहीं थी, तुम barely 3 years की थी, और क्योंकि 3 साल से ज़्यादा की नहीं थी तो आई एम वेरी श्योर कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं होगा। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। मिरांडा इज सेइंग सर्टेनली सर आई कैन, बट मिरांडा इज सेइंग नो सर आई थिंक आई कैन थिंक ऑफ ऑल दोज थिंग्स दैट यूज्ड टू हैपन, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो उसको याद है। Prospero is saying by what, like what, by any other house or person, क्या तुम्हें कोई अदर घर याद है besides this cell, या फिर कोई और इंसान याद है besides me? Of anything the image tell me that had kept with thy remembrance, कोई भी इमेज, कोई भी सीन, कोई भी पिक्चर तुम्हारे दिमाग में है जो अब तक तुम्हें याद है। That hath means has, kept with, thy means your, remembrance means mind, memory। तो कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी मेमोरी में अब तक है, जो तुम्हारी याद बन करके तुम्हारे अंदर वो फ्रेश है और तुम्हें याद है, तुम भूली नहीं हो। ऐसा कुछ है क्या? कोई पिक्चर, कोई सीन, कोई किसी की इमेज, कोई दूसरा घर, कोई दूसरा इंसान?
Miranda is saying it is far off and rather like a dream than an assurance. उसने कहा मिरांडा ने कि हाँ याद तो है लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कोई ब्लर्ड सी इमेज है, बहुत दूर की बात है और एग्जैक्टली याद नहीं है, बहुत ब्लर्ड सी इमेज है, किसी ख्वाब की तरह, किसी सपने की तरह। एश्योरेंस मतलब रियलिटी की तरह नहीं, क्योंकि इमेज बहुत क्लियर नहीं है, ब्लर्ड सी है। दैट माई रिमेम्बरेंस वारंट्स, ऑल राइट। तो मेरी रिमेम्बरेंस को या मेरी मेमोरी को जो चीज़ याद है, जो मेरी मेमोरी गारंटी कर सकती है, इट इज़ नॉट अ वेरी क्लियर इमेज बट समथिंग in the blurred form. Had I not 4 or 5 women once that tended me means looked after me or used to attend to me and take care of me. So Miranda is saying कि क्या 4 से 5 औरतें नहीं हुआ करती थी एक टाइम पर जो मेरा बड़ा ख्याल रखती थी, because she was a princess and she was being looked after by those maids, and this is what she remembers as well. So Prospero is saying thou hadst, and more Miranda. You had, Miranda, and not only 4 or 5 but more than that women were there who used to look after you. Miranda, but how is it that this lives in thy mind? Thy means your mind. But I really wonder कि how do you remember this thing so far? What seest thou else? Thou means you, else means और क्या है तुम्हारे दिमाग में? In the dark backward and abysm of time, मतलब वो सब कुछ बैकवर्ड का यहाँ पर मतलब है जो पीछे छूट गया है, जो बहुत पुरानी बातें हैं। एंड अबिस्म ऑफ टाइम का मतलब है डेप्थ ऑफ टाइम, वक्त की गहराई में बहुत पीछे चली गई हैं वो यादें। लेकिन क्या उनमें से और भी कोई यादें हैं जो अब तक तुम्हारे दिमाग में फ्रेश है और तुम्हें याद है? हाउ दाउ केमिस्ट हियर दाउ मेस्ट, कैसे दाउ मीन्स यू, केमिस्ट मीन्स केम हियर, क्या तुम्हें ये याद है तुम यहाँ पे कैसे पहुँची? यू मे रिमेंबर दैट, मिरांडा इज सेइंग, बट दैट आई डू नॉट। मिरांडा ने कहा लेकिन वो तो याद नहीं है कि कैसे यहाँ पहुँचे। प्रॉस्पेरो इज सेइंग 12 years since मिरांडा, 12 years since, 12 साल पहले की बात है, 12 साल पहले की। इसका मतलब इस वक्त द एज ऑफ मिरांडा इज़ 15 बिकॉज when she came here she was barely 3 years old. Thy father means your father was the Duke of Milan and a prince of power. उस वक्त तुम्हारे फादर मिलान के ड्यूक और पावरफुल प्रिंस हुआ करते थे। मिरांडा इज सेइंग सर आर नॉट यू माई फादर। अच्छा, तो प्रॉस्पेरो ने बताया ही कुछ इस तरह है कि उस वक्त तुम्हारे फादर मिलान के ड्यूक हुआ करते थे, पावरफुल प्रिंस हुआ करते थे। तो उसने कहा कि क्यों क्या आप मेरे फादर नहीं हैं? क्या कोई और है मेरा फादर? दिस वॉज आस्क्ड बाय मिरांडा। सो प्रॉस्पेरो इज सेइंग thy mother was piece of virtue, and she said, thou wast my daughter, and thy father was Duke of Milan, and his only heir a princess no worse issued. Prospero ने कहा thy mother means your mother was piece of virtue. तुम्हारी मदर एक बहुत ही वर्चुअस लेडी थी और उन्होंने हमें ये बताया था कि तुम मेरी बेटी हो। और क्योंकि वो एक वर्चुअस लेडी थी, उनका कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था, तो शी इज़ ट्रस्ट वर्दी एंड देयरफॉर आई ट्रस्टेड दैट यू आर माई डॉटर एंड एट दैट टाइम दाई फादर मीन्स योर फादर, और तुम्हारे फादर मतलब मैं खुद ही उस वक्त मिलान का ड्यूक हुआ करता था और उसकी एक इकलौती मतलब वारिस थी पूरी प्रॉपर्टी, पूरे किंगडम की, वो प्रिंसेस थी। और वो प्रिंसेस कोई और नहीं बल्कि कौन थी? मिरांडा थी। देन इज सेइंग नो वर्स इशूड, इसका मतलब ये है कि और कोई भी नहीं था उस पूरे किंगडम का वारिस बिसाइड्स दैट प्रिंसेस हु इज़ नन अदर दैन मिरांडा। मिरांडा इज सेइंग ओ द हेवंस, ओ माई गॉड, what foul play had we that we came from thence। बट फिर हमारे साथ ऐसा कौन सा खेल खेला गया, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हमारी किस्मत ने हमारे साथ किया? फाउल प्ले का मतलब है ट्रेचरी, धोखा, परफिडी। ऐसा क्या धोखा हमारे साथ हुआ कि हम यहाँ पहुँच गए, वहाँ से फ्रॉम देयर वी केम हियर, और ब्लेस्ड वॉस्ट वी डिड। और या फिर देखो, सी द पॉजिटिविटी ऑफ मिरांडा दैट शी इज़ नॉट ओनली टेकिंग इट एज अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ बट एट द सेम टाइम शी इज़ सेइंग दैट और वॉज इट समथिंग पॉजिटिव दैट वी रीच्ड हियर। तो हमारा यहाँ आना, क्या ये एक हमारे साथ बुरा हुआ, कुछ बुरा था, या फिर हम ब्लेस्ड थे जो हम यहाँ आ गए? Prospero is saying both my girl, by foul play as thou sayest were we heaved thence, but blessedly holp hither,
सो प्रॉस्पेरो इज सेइंग दोनों ही हम अनलकी अनफॉर्चुनेट और लकी दोनों ही थे. बाय फाउल प्ले का मतलब है असल में हमारे साथ एक गेम खेला गया, गंदा गेम. फाउल प्ले इज़ गंदा गेम विच सिंपली मीन्स धोखा, ट्रेचरी. हमारे साथ धोखा हुआ. एज दाउ सेस्ट मीन्स जैसा कि तुमने कहा, एज यू से. वर वी हीव्ड देन, सो फिर हम वहाँ से यहाँ आ गए. लेकिन बट ब्लेसडली हॉल्प हिदर, लेकिन यहाँ पहुँचना हमारे लिए एक ब्लेसिंग थी और जिसकी हमें मदद प्रोवाइड की गई. हॉल्प इज़ हेल्प एंड हिदर मीन्स हियर. यहाँ पर हम एक ब्लेसिंग की तरह जो एक मदद हमें प्रोवाइड की गई उस मदद के साथ हम यहाँ पहुँचे. इसीलिए हमारा यहाँ पहुँचना एक अच्छा भी है, एक ब्लेसिंग भी है. Miranda is saying, oh my heart bleeds to think of the teen that I have turned you to. So Miranda is saying that I am feeling so bad to think about it, that I must have caused you such a big trouble at that point of time, which is from my remembrance, means which even I do not remember. What she means to say at that point of time when you had to suffer from all those things, that treachery, that bad game that was played upon us, and I was barely 3 years old. So being a small child and helpless, I must have turned out to be a trouble to you and a burden to you, and I even do not remember how much suffering I must have caused to you additionally besides that problem which you were suffering from. This was said by Miranda. Please you further, please बताइए ना आगे क्या हुआ. हम तो आपके लिए burden बने रहे होंगे उस वक्त. Prospero is saying, my brother and thy uncle called Antonio. I pray thee mark me. Prospero is saying, my brother and thy uncle. Thy uncle means your uncle, called Antonio. मेरा भाई और तुम्हारा uncle जिसका नाम Antonio है. I pray thee means I request you. Mark me means notice my words. That a brother should be so perfidious means treacherous और धोखेबाज, डिसीटफुल. प्रॉस्पेरो ने कहा मेरा भाई मतलब तुम्हारे अंकल जिनका नाम एंटोनियो है. मेरे शब्दों पर ध्यान दो कि वो कहने को एक भाई था, लेकिन एक भाई इतना बड़ा धोखेबाज साबित हुआ. He whom next thyself, thyself means yourself, next means after yourself, of all the world I loved. इसका मतलब ये है जिसे तुम्हारे बाद इस सारी दुनिया में हमने सबसे ज़्यादा प्यार किया. मतलब प्रॉस्पेरो इज सेइंग कि मेरे लिए तुम्हारे बाद इस बड़ी सी दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था तो वो था मेरा भाई. ऑब्वियसली किसी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो उसके बच्चे होंगे, और बच्चों के बाद कौन था? बेटी के बाद भाई था. एंड टू हिम पुट द मैनेज ऑफ माई स्टेट, और हमने उसके हाथ में अपने पूरे स्टेट, अपने पूरे किंगडम का मैनेजमेंट या संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे दिया था, उस पर ट्रस्ट करके. एंड टू as at that time through all the signories it was the first and Prospero the Prince Duke being so reputed in dignity and for the liberal arts without a parallel. क्योंकि उस वक्त अगर आप देखो तो सारे सिग्नरीज को देखते हुए वो सारे स्टेट्स जो थे उस वक्त नॉर्दर्न इटली में, उन सब को अगर देखा जाता तो उन सब में आई वॉज on top. I was the prime duke. I was the best duke among them. Prospero is talking about himself and saying that he was such a reputable personality. He was so much dignified that people used to respect him, and that his kingdom was the best one among them in that point of time. And for the liberal arts is like elegant arts without a parallel, and also we were known for the elegant arts of ours, and without a parallel means without a match. There was no match, there was no comparison of our art with anyone else's. So we were like the best ones, and for that we were so well known there, and that people used to appreciate us a lot. And those being all my study, the government I cast upon my brother, and it was only because of one reason, and that was my desire to pursue the art of magic, which actually obliged me or forced me to entrust my brother with all the responsibilities of the kingdom so that I could concentrate on my studies. And to my state grew stranger and
As a result, I had kept aside my kingdom by handing it over to my brother, being transported and wrapped in secret studies just because at that point of time I had completely engaged myself and taken myself to that secret studies, which is referring to the art of magic, and wrapped means I was lost, occupied with, or completely absorbed into. So just because I had to get myself completely engaged with the art of magic that I had begun to learn, I couldn't at the same time concentrate on my kingdom, and so I had trusted my brother and handed over the responsibilities of my kingdom to him for a time being, and I have made him a substitute king in my absence so that I could fully concentrate on my studies. Thy false uncle means your dhokebaz uncle. Dost thou attend me means do you listen to me? Are you paying attention to me? Miranda is saying, sir, most hatefully. Hatefully is attentively. So Miranda is saying, sir, I'm listening to you with a lot of attention. Prospero is saying, being once perfected how to grant suit, how to deny them, who to advance and who to trash for overtopping, new created the creatures that were mine. It is a very important line here. You must underline and try to understand, because this is important from the perspective of the reference to context type of questions. Let me tell you, Prospero is saying being once perfected, एक बार जब वो perfect हो गया इस काम में कि किस तरह से वहाँ पर लोगों को हैंडल करना है, किस तरह से किसको सूट देना है. सूट का मतलब है रिक्वेस्ट. सूट इज़ रिक्वेस्ट एंड ग्रांट इज़ लाइक लिसन टू. किसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, ग्रांट करना है मतलब एक्सेप्ट करना है. किसकी रिक्वेस्ट को डिनाई मतलब कि डिक्लाइन मतलब कि रिजेक्ट करना है. हु टू एडवांस मीन्स किसको आगे पहुंचाना है, किसको प्रमोट करना है. हु टू ट्रैश मतलब किसको डिक्लाइन करके किसको डिमोट करना है, किसकी पोजीशंस को आगे बढ़ने से रोकना है, क्योंकि वो मेरे लिए आगे जाके एक ख़तरा साबित हो सकता है. फॉर ओवर टॉपिंग मीन्स जो बहुत ज़्यादा ये कोशिश कर रहा है कि वो आगे जा कर के ख़ुद किंग को ही एक चैलेंजिंग पोजीशन में ले आए. तो ऐसे इंसान को ट्रैश करना है, दबाना है, रोकना है, उसे आगे नहीं बढ़ने देना है, चेक करना है उसी जगह पे किसे आगे की पोजीशंस देनी है सो दैट वो हेल्प कर सके किंगडम को बढ़ाने में, प्रमोट करने में. तो ये सारी चीज़ों को उसने अच्छी तरह से समझ लिया एंटोनियो ने, जो कि प्रॉस्पेरो का भाई है. न्यू क्रिएटेड द क्रिएटर्स दैट वर माइन का मतलब है उसके बाद फिर उसने क्या किया कि मेरे सारे सर्वेंट्स को उसने न्यूली क्रिएट किया, मतलब नए लोगों को अपॉइंट किया. और पहले तो कोशिश किया जो मेरे लोग थे उनको वो चेंज कर पाए, उनके पर्सपेक्टिव को, ओपिनियन को मेरे बारे में चेंज कर पाए, उन्हें वो पूरी तरह से अपनी तरफ कर पाए, अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में ले पाए. और जिसको वो नहीं कर पाया उसको उसने रिप्लेस करके न्यू लोगों को वहाँ पर अपॉइंट कर दिया. तो इस तरह से न्यू क्रिएटेड द क्रिएटर्स दैट वर माइन मीन्स ही completely took all the servants or all the people who were working for Prospero. They were all taken under the control of Antonio through his efforts. First he tried to control them and to make them realize that उनका किंग चेंज हो चुका है. अब उनको सारे कमांड्स जो हैं वो एंटोनियो के फॉलो करने हैं, और उनमें से कुछ अगर नहीं चेंज हुए तो उसको उसने हटा करके रीअपॉइंट किया. तो न्यू क्रिएटेड द क्रिएचर्स दैट वर माइन, ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग पूछा जा सकता है. तो यू शुड राइट डाउन दैट एंटोनियो हैड टेकन ऑल द men who were working under Prospero. So all the men who were working under Prospero, they had been taken under the control of Antonio, right? And Antonio had changed the ones who were not ready to work for Antonio. I say or changed them or else new formed them. As I just told you earlier कि Prospero is saying कि या तो उसने उनको बदल दिया, उनके दिमाग को चेंज कर दिया, उनको बता दिया तुम्हारा कमांडर, तुम्हारा किंग चेंज हो चुका है. अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उस बात को तो फिर उसको रिप्लेस करके नए लोगों को अपॉइंट किया. हैविंग बोथ द की ऑफ ऑफिसर एंड ऑफिस, क्योंकि उस वक्त उसके हाथ में ऑफिसर की भी की थी और ऑफिस की भी की थी, जिसका मतलब ये है कि वो किंग भी था और किंगडम भी उसके हाथ में था. सेट ऑल द हार्ट्स इन द स्टेट टू व्हाट ट्यून प्लीज्ड हिज ईयर, उसने सारे दिलों को, सारे लोगों को उस ट्यून पे नचाया जो उसकी मर्ज़ी का ट्यून था, मतलब सब उसके इशारे पर काम कर रहे थे.
that now he was the ivy which had hit my princely trunk. अब वो एक ऐसी आईवी बन गया जिसने मेरे princely trunk को छुपा लिया. This is a metaphor here which is a figure of speech which compares two things directly. जैसे यहाँ पर comparison हुआ है आईवी का और एक ऐसे पेड़ का. अगर यहाँ पर कोई क्लाइंबिंग प्लांट होता है तो उसका नेचर ये होता है कि वो पूरी तरह से अपने आप को फैला करके और आसपास के प्लांट्स का सपोर्ट लेकर के स्टैंड करता है. और जिससे होता ये है कि जिन प्लांट्स का वो सपोर्ट लेता है अक्सर वही प्लांट जिनके सपोर्ट में क्लाइंबिंग प्लांट खड़ा हुआ है, अक्सर वही सपोर्टर प्लांट या ट्रंक या पेड़ जो है वो छुप जाते हैं उन क्लाइंबिंग प्लांट्स की वजह से, पीछे छुप जाते हैं वो. तो कुछ ऐसे ही उसने किया कि मेरा ही सपोर्ट लेके हमें पीछे कर दिया, खुद आगे आके रियल किंग बन गया और हमें छुपा दिया. एंड सक्ड माई वर्ड्स आउट ऑन इट. और जैसे बिल्कुल वो जो क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं जब वो अपने सपोर्टर प्लांट्स के ऊपर एकदम कवरिंग अपनी कर देते हैं और उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं पूरी तरह से उन्हें कवर अप करके, तो ऐसा लगता है कि जैसे जो वर्ड्योर है, वर्ड्योर इज़ द सैप और द लिक्विड विच इज़ प्रेजेंट इन द लीव्स. तो उस लिक्विड को वो सक कर रहे हैं. और उसी तरह से कुछ ऐसे ही कि मेरे ऊपर ही चढ़कर और मेरी ही चीज़ों को वो सक करके मेरे वर्ड्योर को, मतलब जैसे क्लाइंबिंग प्लांट या जो आईवी है वो अपने सपोर्टर प्लांट के ऊपर जब खड़ा होगा उनके सपोर्ट में तो उन लीव्स के सैप को दैट मीन्स जो लिक्विड लीव के अंदर प्रेजेंट होता है उसको वो सक कर रहा होता है. बिल्कुल वैसे ही मेरे भाई ने मेरे ही ऊपर चढ़ करके मेरे ही किंगडम पर राज करके और मेरी ही पावर को सक करके खुद पावरफुल बन गया और हमें वहाँ से निकाल दिया. Thou means you attendest not. क्या तुम सुन नहीं रही हो मेरी बात को? Miranda is saying, oh good sir, I do. Good sir, I am listening to you very properly. So Prospero is saying, I pray thee means I request you. Mark me means listen to me. I, thus neglecting worldly ends all dedicated to closeness and the bettering of my mind with that which, but being so retired, overprized all popular rate in my false brother, awaked an evil nature and my trust like a good parent, and did beget of him a falsehood in its contrary as great as my trust was. Okay. So Prospero is saying, I pray thee means I pray you, I request you, please listen to me very carefully. I thus neglecting worldly ends. असल में मेरे साथ हुआ ये था कि उस टाइम पर मैंने सारा जो वर्ल्डली एंड था, वर्ल्डली एंड का मतलब है सारी दुनियादारी निगलेक्ट कर दिया था. एंड आई हैड डेडिकेटेड माई सेल्फ कम्प्लीटली टू क्लोजनेस मीन्स टू सेक्लूशन और आइसोलेशन. I had chosen to be isolated completely so that I could concentrate on my studies of the art of magic. And the bettering of my mind means because at that point of time I was simply working upon my mind to enhance the knowledge of my mind and to learn that art of magic. With that which but being so retired. और हुआ ये कि जब हम पूरी तरह से रिटायर हो गए, दैट मीन्स कि उस चीज़ से उससे हम दूर हो गए. Overprized all popular rate in my false brother, awaked an evil nature. All right. मेरी जो पॉपुलैरिटी थी, जो लोग जानते थे, जो एक डिग्निटी थी, वो कॉन्टीन्यूसली रिड्यूस होती जा रही थी और वो रिड्यूस होती गई. और एट द सेम टाइम मेरा जो भाई था, फॉल्स ब्रदर, दैट मीन्स धोखेबाज भाई, उसके अंदर एक ईवल स्पिरिट जाग गई और उसके अंदर एम्बिशन आ गया. And my trust, like a good parent, did beget of him a falsehood in its contrary as great as my trust was. So, and my trust like a good parent, और मेरा जो उसके अंदर ट्रस्ट था एक अच्छे पेरेंट्स की तरह, जो एक अच्छे पेरेंट्स अपने बच्चों पर ट्रस्ट करते हैं, उसी तरह से मेरा ट्रस्ट था उसके अंदर. लेकिन मेरे उस ट्रस्ट ने मेरे भाई के अंदर एक फॉल्सहुड क्रिएट कर दिया, एक ट्रेचरी, एक धोखेबाजी क्रिएट कर दी. और इन इट्स कॉन्ट्री एज ग्रेट एज माई ट्रस्ट वॉज, और जितना ज़्यादा मेरा भरोसा था मेरे भाई पर, उतना ही बड़ा धोखा दिया मेरे भाई ने. दैट मीन्स मेरा जितना बड़ा मेरा ट्रस्ट था उतना ही बड़ा मेरे भाई का धोखा था. विच हैड इंडीड नो लिमिट, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी. इंडीड मीन्स रियली, नो लिमिट मीन्स कोई लिमिट नहीं थी उसकी. अ कॉन्फिडेंस सैंस बाउंड, ऐसा कॉन्फिडेंस, सैंस मीन्स विदाउट, बाउंड मीन्स लिमिटेशन.
इतने कॉन्फिडेंटली मेरे भाई ने ये धोखा किया कि जिस कॉन्फिडेंस का कोई लिमिट नहीं था. He being thus lauded not only with what my revenue yielded but what my power might else exact. अब वो लॉर्ड बन चुका वो लॉर्ड बन चुका था. ना तो सिर्फ रेवेन्यू का जो हमें मिलना चाहिए था, बल्कि उस पावर का भी जिसके पूरी तरह से मैं हकदार था. मतलब प्रॉस्पेरो इज सेइंग, like one who having into truth by telling of it made such a sinner of his memory to credit his own lie. मतलब मेरा भाई इस तरह से कॉन्स्टेंटली ये झूठ अपने आप को बोले जा रहा था कि वो ख़ुद इस बात पर बिलीव करने लगा कि वो किंग है. ऑल्दो वो एक सब्स्टिट्यूट किंग बना था ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ हिज ब्रदर नेम्ड प्रॉस्पेरो टू लुक आफ्टर द किंगडम, एंड शॉर्टली once his brother would have completed his studies in the art of magic, his brother would take back the kingdom. This would have been the case. But what happened with Antonio, that Antonio, who was a younger brother of Prospero and had got the responsibility of the kingdom as a substitute king, he had started thinking in this way that he was a real lord and real king of everything just because of the feeling of ambition which had risen in him. और वो हर वक्त खुद को इतना ज़्यादा ये बात बोलता था, वो इस झूठ में जीने लगा था कि वो रियल किंग है, और इतना ज़्यादा उसने इस झूठ को सोच लिया कि वो अपने ही झूठ को सच मानने लगा था. सो who having into truth by telling of it made such a sinner of his memory. मतलब उसका दिमाग हर वक्त ये सोचता था कि वो एक किंग है, वो एक रियल किंग है, और ये सोचते सोचते उसने ये गुनाह कर दिया अपने दिमाग में इस झूठ को सच बनाकर कि वो सच में एक रियल किंग है. He did believe he was indeed the duke. वो सोचने लगा कि वो रियल में एक ड्यूक है. Out of the substitution, वो सब्स्टिट्यूशन से बाहर निकल गया. वो सब्स्टिट्यूशन को भूल चुका था, अब उसको लगने लगा वो रियल किंग है, and executing the outward face of royalty with all prerogative, hence his ambition growing. और वो पूरी तरह से रॉयलिटी का फेस लेकर के चीज़ों को एग्जीक्यूट करने लगा, रियल किंग बन करके चीज़ों को एग्जीक्यूट करने लगा, सारे प्रेरोगेटिव्स के साथ भी. प्रेरोगेटिव्स प्रिविलेजेस को कहा जाता है, या जो एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं उनको कहा जाता है. तो वो सारे प्रिविलेजेस को भी अपने हाथ में ले चुका था, सारे प्रेरोगेटिव्स को भी ले चुका था, और वो पूरी तरह से अपने आप को एक रियल किंग समझ रहा था. और इस तरह से उसका जो एम्बिशन था उसके दिल में वो बढ़ता गया. एंड ही कंटिन्यूड टू थिंक इन द सेम वे, एंड इवेंचुअली ही कमिटेड दिस क्राइम ऑफ बैनिशिंग हिज ओन ब्रदर एंड एट द सेम टाइम इंश्योरिंग दैट ही शुड डाई अलॉन्ग विद हिज डॉटर who was barely 3 years old at that point of time. Dost thou hear means do you hear me? Miranda is saying, your tale, sir, would cure deafness. Miranda ने कहा, your tale means your story. Sir, आपकी कहानी ऐसी है कि कोई बहरा भी सुनने लग जाएगा. Prospero is saying, to have no screen between this part he played and him he played it for. He needs will be absolute Milan. Me, poor man, my library was dukedom large enough. Actually ये हुआ, Prospero is saying, to have no screen between this part he played and him he played it for. Actually उसने एक सेपरेशन को हटा दिया. कोई स्क्रीनिंग नहीं रखा उसने. स्क्रीनिंग इज़ लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन और बाउंड्री बिटवीन अ रियल किंग एंड अ किंग एज अ सब्स्टिट्यूशन. तो उसने उस बाउंड्री को, उस स्क्रीन को हटा दिया, और वो पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट किंग से एक रियल किंग की तरह जीने लगा और अपने पावर्स का, सब चीज़ का इस्तेमाल करने लगा. और क्योंकि उसने वो स्क्रीन हटा दिया, वो सेपरेशन हटा दिया, इस वजह से उसको फिर ख़ुद भी ये लगने लगा कि ही इज़ द रियल किंग. ही नीड्स विल बी एब्सोल्यूट मिलान. और उसको लगा कि अब उसकी जो ज़रूरत है वो ये है कि वो कम्प्लीटली मिलान का राजा बन जाए, क्योंकि ही इज़ द वन हु इज़ लुकिंग आफ्टर द किंगडम एंड दैट हिज ब्रदर is of no worth and does not deserve to be a king there. And me, जहाँ तक मेरा सवाल है,
बीइंग अ पुअर मैन, मेरे लिए तो मतलब पुअर मैन इन द सेंस कि मैं बेचारा, सिर्फ लाइब्रेरी ही मेरा ड्यूकडम रह गई थी उस वक्त। ऑफ टेम्पोरल रॉयल्टीज़ ही थिंक्स मी नाउ इनकैपेबल। टेम्पोरल रॉयल्टीज़ का मतलब है टेम्पररी पावर्स। एक्चुअली किंग जो है वो किंग को टेम्पोरल रॉयल कहा जाता है या टेम्पोरल रॉयल्टीज़ होती हैं उसके पास, क्योंकि वो टेम्पररी पावर है। टेम्पररी पावर का मतलब ये नहीं है कि 10 साल बाद उसको किंगशिप से हटा दिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि एक इंसान किंग तब तक होगा जब तक वो अर्थ पे है, और क्योंकि ये अर्थ भी एक मॉर्टल प्लेस है तो अर्दली पावर को हमेशा टेम्परेरी पावर कहा जाता है, क्योंकि जो एक परमानेंट पावर है वो सिर्फ गॉड के पास है, जो रियल पावरफुल है वो सिर्फ गॉड है। एक इंसान चाहे किंग ही क्यों ना बन जाए, लेकिन उसकी पावर सिर्फ अर्दली हो सकती हैं या टेम्पररी हो सकती हैं, बिकॉज अर्थ हैज़ टू कम टू एन एंड वन डे एंड ऑल्सो दैट पर्सन हैज़ टू डाई, वेदर द पर्सन इज़ अ किंग और एनी वन, ही विल हैव टू डाई वन डे, keeping aside, leaving aside all those powers, and therefore even as a king, whatever you get in the form of power and privileges, all those are temporary. So ये जो अर्दली पावर टेम्पोरल रॉयल्टीज़ थी किंगशिप की या ड्यूकडम की, उसके बारे में एंटोनियो ये सोचने लगा कि उसका भाई प्रॉस्पेरो इनकैपेबल है। प्रॉस्पेरो बता रहा है अपनी बेटी मिरांडा को कि मेरा भाई एंटोनियो ये सोचने लगा कि आई एम नो मोर कैपेबल ऑफ दैट टेम्पोरल रॉयल्टी और दैट अर्दली पावर, द पावर ऑन द अर्थ एज अ किंग। मैं उसके काबिल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आई एम मोर इंटरेस्टेड इन पेइंग अटेंशन टू माई स्टडीज़। कॉन्फिड्रेट का मतलब है कॉन्स्पिरेसी करना, साजिश करना, कॉन्स्पायर, और फिर मेरा भाई साजिश रचने लगा। सो ड्राई ही वॉज फॉर स्वे, मतलब इतना वो प्यासा हो गया, इतना ड्राई, ड्राई मतलब थर्स्टी, पावर के लिए, ताकत के लिए, किंगशिप के लिए, ड्यूकडम के लिए वो इतना भूखा, इतना प्यासा हो गया कि वो साजिश करने लगा विद द किंग ऑफ नेपल्स, नेपल्स के किंग के साथ जिसका नाम है एलोंसो, to give him annual tribute, do him homage, subject his coronet to his crown and bend the dukedom, yet unbowed, alas poor Milan। और वो हर चीज़ के लिए रेडी हो गया, वो एनुअल ट्रिब्यूट देने के लिए भी रेडी हो गया एलोंसो को, होमेज देने के, एनुअल ट्रिब्यूट इज़ लाइक एनुअली, साल में एक बार एक अमाउंट ऑफ मनी देने के लिए रेडी हो गया, उसे होमेज पे करने के लिए रेडी हो गया, और सब्जेक्ट हिज कोरोनेट टू हिज क्राउन। इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह से अपने मिलान को एक तरह से झुका दिया उसने किंग ऑफ नेपल्स के आगे, और वो कहीं ना कहीं उसके इशारों पे चलने के लिए तैयार हो गया। अपने ड्यूकडम की वैल्यू को कम करके उसने ड्यूकडम को झुका दिया, येट अनबाउट, लेकिन फिर भी मेरा ड्यूकडम आज भी झुका नहीं है। ये कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरो के दिल की आवाज़ है, और प्रॉस्पेरो इज़ गेटिंग सो इमोशनल while saying this because he has been a king once of that dukedom and he cannot think of it being bent down in that way, and therefore he is saying that it is not yet that my kingdom is bowed। alas poor Milan, बेचारा मेरा मिलान, मेरे एब्सेंस में क्या हो गया उसके साथ। टू मोस्ट इग्नोबल स्टूपिंग, बट आई थिंक ये जो मेरे भाई ने किया ये सबसे ज़्यादा इग्नोबल मतलब बेइज्जती वाली, स्टूपिंग मतलब झुकना था, बहुत बेइज्जत किया उसने मेरे भाई ने मेरे ड्यूकडम को इग्नोबल तरीके से, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बेंड डाउन किया, झुकाया किसी अदर किंगडम के आगे। मिरांडा इज सेइंग ओ द हेवेंस, मीन्स ओ माय गॉड। प्रॉस्पेरो इज सेइंग मार्क हिज कंडीशन, देखो ज़रा उसकी कंडीशन को, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखो जो उसके सामने रखी गई, और उसको भी उसने एक्सेप्ट कर लिया। एंड द इवेंट इज़ द रिजल्ट। और फिर बताओ, देन टेल मी इफ़ दिस माइट बी अ ब्रदर, कि क्या कोई भाई अपने भाई के किंगडम को, जो कि उसका भी किंगडम है एक तरह से, वो उस फैमिली से जुड़ा हुआ है, और कैसे उसने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मान करके अपने किंगडम को झुका दिया। मिरांडा इज सेइंग आई शुड सिन, तो उसने कहा प्रॉस्पेरो ने कि क्या ये कोई भाई कर सकता है, तुम ही बताओ मिरांडा। मिरांडा ने कहा ऐसे में तो उसको आपका भाई कहना भी एक गुनाह लग रहा है। To think, but nobly of my grandmother good wombs have born bad sons, बुरा लग रहा है ये सोच करके कि मेरी ग्रैंडमदर जो कि एक वर्चुअस लेडी थी, जिन्होंने आप जैसे इंसान को शी गिव बर्थ टू, और फिर
उसी लेडी ने, उन्हीं की वूम्स ने जो है ऐसे बच्चों को भी बर्थ दिया. Good wombs, womb, we know that it refers to that part of a female body where a fetus develops into a child. So good wombs have born bad sons, means कि good women have also given birth to such bad sons, कि अच्छी मदर्स के भी इतने बुरे बेटे हो सकते हैं. ये सोचकर बुरा लग रहा है और कहा नहीं जा रहा है कि वो मेरी ही ग्रैंडमदर के बेटे हैं, आपके भाई. Prospero is saying, now the condition, the king of Naples being an enemy to me inveterate hearkens my brother's suit, which was that he, in lieu of the premises of homage, and I know not how much tribute, should presently extirpate me and mine out of the dukedom, and confer fair Milan with all the honors on my brother. और फिर हुआ ये, प्रॉस्पेरो इज सेइंग कि फिर कंडीशन ये हुई कि जो किंग ऑफ नेपल्स था एलोंसो, उसने मेरा दुश्मन क्योंकि बन चुका था वो पूरी तरह से. सो टू मी इन्विट्रेट मतलब बहुत ही रिलेंटलेसली, बहुत ही बदतमीज़ी के साथ सुनना मेरी बात को. हरकिन मतलब लिसन, ओके सॉरी, लिसन माई ब्रदर सूट. हरकिन्स माई ब्रदर सूट मतलब लिसन टू माई ब्रदर्स प्रपोज़ल, मतलब एलोंसो ने मेरे भाई के प्रपोज़ल को, मेरे भाई के ऑफ़र को सुना और मेरा दुश्मन बन गया और हमें वहाँ से निकालने में, उस किंगडम से निकालने में मेरे भाई एंटोनियो की मदद किया किंग एलोंसो ने. विच वॉज दैट ही इन ल्यू ऑफ द प्रीमाइसेस. अच्छा, ये सब कुछ उसने क्यों किया? इन ल्यू मतलब इन प्लेस ऑफ द प्रीमाइसेस, क्योंकि उसके बदले में उसको कुछ मिल रहा था, उसकी कंडीशंस फुलफ़िल हो रही थी. ऑफ होमेज की कंडीशन, एंड आई नो नॉट हाउ मच ट्रिब्यूट, और कुछ साल का ट्रिब्यूट भी डिसाइड हुआ था. कितना अमाउंट वो तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ कुछ डिसाइड हुआ था. शुड प्रेजेंटली एक्सटर्पेट मी, और उन सब के बदले एलोंसो ने एंटोनियो की मदद किया इस चीज़ में कि वो प्रॉस्पेरो को एक्सटर्पेट कर सकें, उसको वहाँ से निकाल सकें एंड हमें मेरे ही किंगडम से निकाल सकें. और फिर उस फेयर मिलान को कन्फर कर दिया सारी इज़्ज़त के साथ, मतलब ऑनर्स के साथ, मतलब पूरा फॉर्मल तरीके से, लीगली विद ऑल द ऑनर्स इन ऑल द वेज़ उसको कन्फर कर दिया, मेरे भाई के हैंड ओवर कर दिया, मेरे भाई के हाथ में दे दिया मिलान के किंगडम को. वेयर ऑन अ ट्रेचरस आर्मी लिविट. हुआ कैसे था ये सब कुछ? एक धोखेबाज आर्मी भेजी गई एलोंसो की तरफ से, जो कि आधी रात में मिडनाइट में फेटेड टू द पर्पस डिड एंटोनियो ओपन द गेट्स ऑफ मिलान. क्योंकि पहले से ये सब कुछ प्लान के हिसाब से होना था, तो एंटोनियो ने उस दिन क्या हुआ कि आधी रात तक जो है मिलान के कैसल का जो दरवाज़ा था उसको खोल करके रखा, और दरवाज़ा खुला हुआ था, जानबूझ करके खोल के रखा गया. आर्मी एंटर करती है अचानक से, एलोंसो की भेजी हुई आर्मी, इन द डेड ऑफ डार्कनेस मतलब इन द मिडनाइट, आधी रात में जब बहुत अंधेरा है. द मिनिस्टर्स फॉर द पर्पस हरीड थेंस, और जो मिनिस्टर्स, जो एजेंट्स लगे हुए थे उनके काम के लिए, उन्होंने हम लोगों को पर्पसली वहाँ से निकाला, मुझे और तुम्हें. मी एंड दाई क्राइंग सेल्फ मतलब हमें और तुम्हें भी, जो कि तुम इस वक्त बहुत रो रही थी, और फिर जल्दी जल्दी हमें वहाँ से निकाला गया, और निकाल करके किंगडम से निकाला गया हमें. एंड देन वी वर सेंट टू सी शोर, एंड नॉट एग्जैक्टली अ सी शोर बट हमें सी में ही डाल दिया गया था, एक बोट में, सी में. Miranda is saying, "Alack for pity, alas, I'm feeling so pitiful. I not remembering how I cried out then. I do not even remember how badly I must have been crying at that point of time. Will cry it over again, but by listening to this story, I feel like crying all over again. It is a hint that brings mine eyes to it." And because I don't know why, but it is ब्रिंगिंग टीयर्स टू माई आइज़ ऑल ओवर अगैन. मेरी आँखों में आंसू आ जा रहा है, फिर से मेरी आँखें भर आई हैं. प्रॉस्पेरो इज सेइंग हियर अ लिटिल फर्दर, अभी तुम्हें और भी आगे की कहानी सुननी है. एंड देन आई विल ब्रिंग दी मीन्स यू टू द प्रेजेंट बिजनेस. सो लेट मी टेल यू समथिंग मोर रिलेटेड टू आवर पास्ट, एंड देन आई विल ब्रिंग यू टू द प्रेजेंट सिनेरियो विच नाउ इज़ अपॉन इज. दैट मीन्स कि जो अब होना है, तो पहले तुम पास्ट की ये बातें सुन लो जितनी रिक्वायर्ड है तुम्हारे लिए, उसके बाद फिर तुम्हें प्रेजेंट की बातें बताएंगे. विदाउट द विच दिस स्टोरी वर मोस्ट इम्पर्टिनेंट, क्योंकि
यहाँ पर वैसे इम्पर्टिनेंट का मतलब कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पर इम्पर्टिनेंट का मतलब है इर्रेलेवेंट। सो यहाँ पर इर्रेलेवेंट मतलब है, या आप कह सकते हो पॉइंटलेस मतलब है, मतलब देयर इज़ अनदर मीनिंग एज वेल ऑफ इम्पर्टिनेंट. दिस इज़ व्हाट आई मीन टू से. So, without the which this story were most impertinent. So, Prospero is saying, let me tell you something more about your past, and then I will come on to a story which is related to the current situation or the present situation. Because if I do not tell you that particular thing which is related to the present situation, then telling you all this past story will turn out to be impertinent or useless or worthless. तो तुम्हें पास्ट की वो बातें बताने का मकसद ही यही है, क्योंकि तुम्हें उन बातों को बताने के बाद कुछ ऐसा बताना है जो प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड है. अगर वो प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड बात नहीं बतानी होती तो फिर पास्ट की ये कहानी बताने का कोई मतलब ही नहीं था. मिरांडा इज सेइंग wherefore did they not that are destroy us. तो मिरांडा इज सेइंग why didn't they kill us at the same time. उनके पास तो बहुत अच्छा मौका था, उन्होंने हमें सी में क्यों छोड़ा, वहीं पे जान से मार देते. Prospero is saying, well demanded wench. Wench is girl. Well demanded means a nice question. अच्छा सवाल पूछा है. My tale provokes that question. I can understand that my story will surely arise that question. Provoke is arise, stimulate. ऐसा सवाल तो बनता है ये कहानी सुनने के बाद. Dear, they durst not. So, dear, the love my people bore me. They durst means they dare not. Actually dear, उनकी हिम्मत नहीं हुई ऐसा करने की, क्योंकि जो मेरे लोग थे, जो मेरी जनता थी, सब्जेक्ट थे मेरे, वो हमें बहुत प्यार करते थे. नॉर सेट अ मार्क सो ब्लडी ऑन द बिजनेस. और दूसरी वजह ये थी कि ये लोग अपने काम को इतना ब्लडी नहीं करना चाहते थे, ये अपने काम पे खून का दाग स्टेन नहीं लगाना चाहते थे, ये अपने काम को बहुत ही क्लीन और नीट एंड क्लीन तरीके से करना चाहते थे, वाइट एक्ट करना चाहते थे, उसको गंदा नहीं करना चाहते थे खून से, कि फिर बाद में लोगों को पता चले कि अच्छा इन्होंने प्रॉस्पेरो को मार दिया, फिर लोग खिलाफ हो जाएं, इन्हें एज अ किंग एक्सेप्ट ना करें. But with colors fairer painted their foul ends, in few they hurried us aboard a bark. बट वो अपने उस गंदे काम को भी पेंट करना चाहते थे फेयर कलर्स के साथ. फेयर कलर्स का मतलब है कि वो अपने उस गंदे काम को भी बहुत अच्छा बनाना चाहते थे. वो नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि उनके दिल में गलत इंटेंशंस हैं, या फिर उन्होंने प्रॉस्पेरो को मार दिया, कोई गंदा काम किया. तो उन्होंने अपने उस फाउल एंड को, मतलब बैड इंटेंशंस को, बहुत ही वाइट तरीके से पेंट कर लिया, अच्छे कलर से पेंट कर लिया, उसको फेयर बना दिया. इन फ्यू दे हरीड अस अबोर्ड अ पार्क. इन फ्यू का मतलब है ब्रीफली, इन शॉर्ट. उन्होंने हमें पहुंचा दिया एक बाग में, एक स्मॉल बोट में. बोर अस सम लीग्स टू सी, मतलब काफ़ी दूर ला करके एक सी में, एक बोट में हमें छोड़ दिया. वेयर दे प्रिपेयर्ड अ रॉटन कैरकस ऑफ अ बट. जहाँ पर उन्होंने प्रिपेयर किया था अ रॉटन कैरकस का मतलब है एक ऐसी बोट. कैरकस रेफर्स टू अ डेड बॉडी. रॉटन इज सड़ा हुआ, तो एकदम ऐसी लकड़ी जो एकदम ख़राब हो चुकी थी, सड़ी हुई, आप जिसको डेड बॉडी की तरह कह सकते हैं. तो एक ऐसी बोट वहाँ पर थी जो एकदम पैथेटिक कंडीशन में, डायलापिडेटेड कंडीशन में थी, और उसको उन्होंने यूज़ किया. नॉट रिग्ड, नॉट टैकल, सेल, नॉर मास्ट. मतलब उसका ये सारे जो हैं वो पार्ट्स हैं शिप के, मतलब उस बोट का कोई भी पार्ट अवेलेबल प्रॉपर नहीं था. वो पैथेटिक कंडीशन में, बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में वो बोट थी, और उस बोट में हम लोगों को बिठा दिया. द वेरी रैट्स इंस्टिंक्टिवली हैव क्विटेड, मतलब जानबूझ करके हम लोगों को उस बोट में छोड़ा गया. दैट मीन्स कि इसलिए हमें उस बोट में छोड़ा गया क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर छोड़ देने का मतलब ये है कि दे विल डाई देमसेल्व्स. ज़ाहिर है वो बोट की कंडीशन इतनी पैथेटिक है और सी में छोड़ रहे हैं, और एनीथिंग कैन हैपन, वी कुड ईजीली डाई. सो देयर दे hoist us to cry to the sea that roared to us. वहाँ पर उन्होंने हमें छोड़कर गुड बाय कर दिया, जहाँ पर वो सी ऐसा लग रहा था कि भूखी सी हमारे सामने रोर कर रही थी. And we were like helpless to sigh to the winds. To sigh, okay,
तो हमें ऐसी कंडीशन में छोड़ दिया जहाँ पर एक हंग्री सी हमारे सामने रोर कर रही है और हम उसके सामने रो रहे हैं हेल्पलेसली। टू साई मीन्स टू टेक अ डीप ब्रेथ टू द विंड्स। जब हवा तेज़ चल रही है और ऐसा लग रहा है स्टॉर्म आ जाएगा, टेम्पेस्ट आ जाएगा और जो हमारी बोट को ट्रबल कॉज करेगा, तो ऐसा लग रहा है कि हम हेल्पलेसली सिर्फ गहरी सांसें ले रहे हैं और प्रे कर रहे हैं उस विंड से कि वो रुक जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो टेम्पेस्ट बन जाए और हमारी बोट इस सी में कहाँ चली जाए किसी को पता भी नहीं चलेगा। Whose pity sighing back again did us but loving wrong। और जिसने शायद हमारे साथ पिटी शो भी किया, राइट। और क्योंकि जब हम पिटीफुली उसके साथ प्रे कर रहे थे तो ऐसा लगा whose pity sighing back again, that means it sighed back, it replied to us in the same pitiful manner and it did not harm us। और यू कैन से कि अगर उसने हमें जो थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया भी उस विंड ने, तो ऐसा लगा जैसे कि एक लविंग तरीके से पहुंचाया, जस्ट बिकॉज it was which was almost impossible for us to reach ashore safely and it became possible। Try to understand, जो कि जिस बात की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई भी इस इम्प्रेशन में होगा कि जिस तरह की बोट में, शिप में उनको सी में छोड़ा गया है, ज़िंदा बचना तो इम्पॉसिबल टाइप का है। अगर फिर भी हम ज़िंदा बचकर किनारे पर पहुंच गए और इस आइलैंड पे इतने सालों से रह रहे हैं, उस पैथेटिक कंडीशन की बोट को भी कुछ नहीं हुआ सी के अंदर, तो इसका मतलब कि द नेचर had turned out to be sympathetic and compassionate towards us, and even if it did anything wrong to us, it showed its love as well and pity as well by helping us reach ashore safely. So this was said by Prospero. Then Miranda is saying, alack, what trouble was I then to you, means alas, I'm feeling so bad to think that I must have been a trouble to you at that point of time when I was not able to do anything, but I was just a small child and I must have caused a burden to you. Prospero is saying, oh, a cherubim thou wast, that did preserve me. Prospero is saying, oh, an angel you were to me who helped me to save my life. Thou didst a smile infused with a fortitude from heaven। उस वक्त जब तुम स्माइल करती थी तो ऐसा लगता था it used to be a fortitude from heaven, means it was like a source from heaven। ऐसा लगता था कि हमें एक प्रोटेक्शन, fortitude is a protection। तुम्हारी स्माइल ऐसा लगता था कि एक प्रोटेक्शन का सोर्स बनकर आ रही है आसमान से। ऐसा लगता था कि गॉड इज़ सेंडिंग एन एश्योरेंस ऑफ प्रोटेक्शन टू अस फ्रॉम द हेवन व्हेन यू यूज टू स्माइल। व्हेन आई हैव टेक्ड द सी विथ ड्रॉप्स फुल सॉल्ट अंडर माई बर्डन ग्रोन्ड, which raised in me an undergrowing stomach to bear up against what should ensue. Then is saying, when I have decked the sea, that means when I have sprinkled the sea with drops full salt. That means when I was crying and covering the sea with my salty tears. That means we know that the water of the sea is brine water or it is salty water, and Prospero is saying that when he was crying he was adding to that salty water with the help of his tears, and is saying that when he was crying and also suffering badly, then at the same time he was thinking that he is all set to tolerate any kind of a pain that would ensue or that would follow. So while he was suffering in that sea, he was crying and he was adding to that salty water through his tears, and he was suffering and groaning due to the pain. At the same time, he was all set. He had collected all his strength to face whatever would happen after that.
So I think I should stop it here, and we will go ahead in the next video lecture, uh, part 2 of this scene, line by line explanation. Thank you so much for watching.